हमको साथ दीजिए, साथ। जिस ड्रेस को पहनकर उसने बैटल लड़ी थी, उस ड्रेस को 1 साल तक नहीं उतारा। খুব এক্সাইটিং লাগছে, খুব ভালো লাগছে দেখতে ঘুরতে। আর সেই পুরোনো একবার দেখে এসেছিলাম, সেগুলো আবার মনে পড়ে যাচ্ছে কোথায় কোথায় কী করেছিলাম। ठीक है, अब ये बनाया तो अच्छे से क्योंकि आज तक स्टैंड कर रहा है, लेकिन हम ये पाते हैं कि इसमें कुछ गलतियां हैं। গুড মর্নিং, আমরা পৌঁছে গেছি দিল্লি। নৈনিতাল থেকে ফিরে গেছি আজকে ভোরবেলায় 4:30টায় নেমে গেছি। তো হোটেলে ঢুকে একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে রেডি হয়ে এবারে দিল্লি দর্শনে বেরোচ্ছি। ভালো জায়গাতেই হোটেলটা আছে। আগের দিনে দিল্লিতে যেখানে ছিলাম সেটা আলাদা হোটেল, আর এটা আলাদা হোটেল। একটু বড়, আর একটু বড় সড়ো ভালো হোটেল নেওয়া হলো ভেতরে। হ্যাঁ, এত বড় দরকার নেই, কারণ ফ্যানেরা চলে আসবে। এখানে হোটেল বুক করতে হলে আগে থেকে নেটে বুক করে আসাই ভালো, নইলে অনেক রকম ঝামেলা আছে যেগুলো ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। তাই আগে থেকে বুক টুক করে ভালো করে দেখে শুনে মানে আসা দরকার। বল কেমন ঘুরলি নৈনিতাল? এটা কোথায় এসেছিস? দিল্লি। কোথায় নেমেছি আমরা কালকে? হ্যাঁ, ওখান থেকে কোথায় এলাম? এটা হোটেল না? হ্যাঁ, এটা বাবা ডিলাক্স। হ্যাঁ, এটা কোন দিল্লি? এটা নিউ দিল্লি। ঠিক, ব্যস্ত রাস্তা, সারাক্ষণই ব্যস্ত সবাই। আমাদের ক্যাপ্টেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। ক্যাপ্টেন কেন ঝিমিয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ঘুরতে হবে, ঘোরাঘুরি ভালো। ক্যাপ্টেনের এনার্জি এরকম থাকলে হবে না। ক্যাপ্টেন তো মোটিভেট করবে সবাইকে, ক্যাপ্টেন নিজেই ডিমোটিভেট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন লিড করবে কি করে? ক্যাপ্টেনের পকেট খালি হয়ে গেছে, ওই জন্য চুপ হয়ে গেছে। তাহলে রিচার্জ করে দিতে হবে নাকি ক্যাপ্টেনের পকেটটা? আচ্ছা, দাঁড়া, রিচার্জ করে দিচ্ছি। আমরা দিল্লিতে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছি এই ওলা উবেরে বুক টুক করে। এবারে দিল্লি দর্শন করতে বেরিয়েছি। ফার্স্টেই যাব কুতুব মিনার। তো বেশ চারিদিকটা এখন ওইখানটাতে একটু বৃষ্টি হচ্ছিলো, এখানটা দেখছি শুকনো আছে। তো দেখা যাক কতটা কি ওয়েদারটা আমাদেরকে সাথ দেয়। এবার তো আমাদের প্রদীপ জামাইবাবু নেই যে আমাদেরকে ওয়েদারটা আমাদের সঙ্গে সাথ দেবে, এবারে ওই জন্য ওয়েদার আমাদের সাথ দিচ্ছে না। তো দেখা যাক যদি প্রদীপ জামাইবাবুর একটু আশীর্বাদ আমাদের, হ্যাঁ আশীর্বাদ যদি আমরা পাই, একটু ওয়েদারটা আমাদের সাথ দেয়, দেখা যাক। বড়বাবু কৃপা করো একটু আমাদের ওয়েদারটা সাথ দিক। হ্যাঁ, দিল্লির ট্রাফিকই আছে। বাপরে বাপ, কত গাড়ি কত গাড়ি। ওরে বাপ, মিনারে এসেছি, টিকিট কাটতে যাচ্ছি টিকিট কাউন্টারের দিকে। দেখা যাক কত করে কি টিকিট হয়। हमको साथ दीजिए, साथ। কুতুব মিনারের চার্জ যদি ইয়ে দিয়ে নেওয়া হয়, এটিএম দিয়ে নেওয়া হয় 35 টাকা, আর যদি ক্যাশ দেওয়া হয় 40 টাকা। আমি এটিএম আর বার করলাম না, 5 টাকা করে ইয়ে হলো, নিলাম। টিকিট কাটা হয়ে গেল, 7টা টিকিট। এই যে ছোটো করে একটুখানি
টিফিন খাচ্ছে। কোথায় 15 15 নিচে টিকিট লাগবে, তো ঝিনুককেও আন্ডার 15 বলে দিয়েছিলাম। চলো ওইখানটাতেই দাঁড়িয়ে আছি। ওই যে আমাদের হিরো, ফটো তুলছি দাঁড়া। दो होता है, आप अपना जो रट्टा मारे हैं या इतना दिन से जो आप समझा रहे हैं सबको, ऐसे बोलने जा रहे हैं, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा अगर होगा तो नहीं होगा। आप कम समझाओ लेकिन हम लोग को समझाओ। मैं बोलूँगा सर, आपके समझ में आएगा सर। हाँ। जब समझ जाए आप कहना आगे बढ़िए, तभी बढ़े। बस ठीक है, मतलब उतना हुला बालू में नहीं चलना है। टाइम का भी ध्यान रखना। हाँ, टाइम ध्यान रखना है, वो तो सही है। बोले सर। अब सर, जब भी हम किसी मॉन्यूमेंट को विजिट करने के लिए जाते हैं तो हमारे को यदि थोड़ा आर्किटेक्चर का नॉलेज है तो बिल्डिंग ही अपना परिचय खुद देती है कि मेरे को किसने बनवाया था, मेरे को बनाने का जो स्टाइल है वो किस डायनेस्टी से रिलेट करता है। जैसे कि हम फिलहाल एक गेट के साथ खड़े हुए हैं और ऐसा ही एक गेट वहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हम दोनों गेटों को आपस में जोड़ सकते हैं क्योंकि इनके बनाने का स्टाइल एक जैसा है। और यदि हम ये कहें कि ये बनाने का जो स्टाइल है इसका हमें नॉलेज है कि ये मुगल्स का है, मुगल्स का अपना एक स्टाइल है, तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि ये सारा की सारा जो हिस्सा है मुगल पीरियड में बनाया गया था। ठीक है, किसने बताया? इस गेट के बनाने के स्टाइल ने बताया। ठीक है, जैसे कि मॉस्क आपको लेफ्ट में, मेरे लेफ्ट में जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्डिंग, ये मॉस्क है। बिल्डिंग के बनाने के तरीके से हम ये बताएंगे कि किस डायनेस्टी के टाइम पर ये बना था। तो जैसे 3 गुंबदों के ऊपर इन्वर्टेड लोटस का डिज़ाइन इसमें नज़र आ रहा है, वैसे ही मुगल पीरियड में बनी हुई सभी मॉस्क में नज़र आता है। तो मुगल्स के बनाने का स्टाइल कैसा है? 3 तो डोम बनाए जाएंगे और साथ में एक इन्वर्टेड लोटस यानी कि उल्टा कमल का फूल, यानी कि इसकी जो पेटल्स हैं वो जब नीचे से देखेंगे तो ऐसे नज़र आएंगी, नीचे से खिलता हुआ नज़र आएगा ये। तो ये स्टाइल जो यूनिक स्टाइल है ये मुगल्स का है। तो ये मुगल पीरियड में बनी मॉस्क है, तो इसका मतलब ये मुगल मॉस्क है। और इसके सामने जो ये सारे कमरे नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये यहाँ पे रुकने की जगह है, ये एक ट्रैवल इन है। ठीक है, जो लोग देश विदेश से यहाँ आते थे ट्रेड के लिए वो लोग यहाँ रुकते थे और यहाँ रुक के वो अपने एक्सपीरियंस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मतलब इट्स लाइक ट्रेड फेयर। हाँ, एक दूसरे से पूछते थे, इंटरेक्शंस होता था कि मुझे साउथ में जाना है, क्या तुम्हें एक्सपीरियंस है? तो वो दूसरा जो ट्रेड मैन है वो कहता था हाँ मैं तो साउथ से ही आ रहा हूँ, कि यार मैं पहली बार आया हूँ, मुझे थोड़ा सा बताना है यार, क्योंकि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर बहुत ही अच्छा शहर है, उसका नाम वो है, वहाँ के लोग बड़े ही अमीर हैं, उनका खास जो टेस्ट है वो स्पाइस में है, यदि तुम कुछ स्पाइस लाए हो तो उसने कहा ठीक। तो ऐसे करके इन्हेंस होता था, वो अपनी नॉलेज को बढ़ाता था कि आखिरकार इसका कंट्री का जो लैंडस्केप है वो है क्या और यहाँ के लोगों की जो खास पसंद है वो क्या चीज़ है, और फिर वो उस डिमांड को पूरा करते थे। अब ये बिल्डिंग तो ये हो गई, ये क्या बिल्डिंग है? ये एक डाक बंगलो है ब्रिटिश के टाइम का। अब मॉन्यूमेंट इतना ज़्यादा डोमिनेंट मॉन्यूमेंट है, इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ये जो मीनार है इतना इम्प्रेसिव है कि सभी लोग देखना चाहते हैं। अब मान के चलो मैं एक ब्रिटिश हूँ और मेरी नौकरी इंडिया में लगा दी, तब जब साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश का शासन था, न्यूजीलैंड में भी शासन था, ऑस्ट्रेलिया में भी शासन था, कनाडा में भी शासन था, और मेरे को नौकरी का नंबर कहाँ आया? मैं आर्मी में हूँ कि भाई आपको जाना है इंडिया जाना है,
अब वो आया, उसने कहा यार मैंने सुना है यहाँ से एक ऐसा टावर है कोई, मैं देखना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे रुक सकता है। इसके अलावा मेटकॉफ जो एक गवर्नर थे, इस इलाके को जो गवर्न किया करते थे, उनका भी छतरी पीछे है। ठीक है, अब आगे अब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से एक सरसरी नज़र डालेंगे, एक बर्ड व्यू, ठीक है ना, यहाँ से एक सरसरी नज़र डालेंगे, तो हम इसका एक साइज जो है अपने दिमाग में सेट करेंगे। जिस मॉन्यूमेंट को हम विजिट कर रहे हैं उसका एक मोटा मोटा साइज, आखिरकार ये कितना बड़ा है। तो जैसे कि आपने ये बाउंड्री, ऐसी ही बाउंड्री वहाँ तक देखी, ठीक है, तो इसका साइज ऐसे जाता है और लेफ्ट में फिर ऐसे टर्न होता है, और फिर यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये सीधा एक दीवार यहाँ से जाके वहाँ पर फिर कॉलम्स मिलते हैं, ठीक है ना, और फिर वहाँ से वो ऐसे घूम जाता है। तो हमारा जो मॉन्यूमेंट है टोटल इस एरिया में, ठीक है सर, इसमें। अब इसमें सभी डायनेस्टीज का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जो है मॉडिफिकेशन रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, कुछ चेंजमेंट रहा है, ठीक है कि वो मैं आपको ग्रेजुअली बताऊँ। फिलहाल हम थोड़ा सा वॉक करके उस नीम के पेड़ के नीचे तक पहुँचेंगे। ঠিক। বলে যায় আমার এখানে আকবর যেমন এখনো কথা এটা বোধহয় এন্ট্রেন্সটা 17টা ইয়ে করে রেখেছিল, এখনো কতগুলো ফাঁকা আছে, মানে আগে থেকে খুলে से नजर आ जाएंगे, लेकिन रात में तो हम खुद ही सो जाते हैं, तो रात में जो बर्ड एक्टिव रहती हैं वो हमारे को कम नजर आती है। मैं आपको नाइट में यानी नॉकटर्नल देखिए जरा, প্যাঁচা ওই দেখো, তো উপরটা ওই দেখো দুটো পেঁচা, ওইটা এই যে এই যে এই যে। চলে যাবে। ठीक है, 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान का शासन, ठीक। और हम फिलहाल पृथ्वीराज चौहान के फोर्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर दो बड़े युद्ध उनके अफगानिस्तान के जो रूलर्स थे, उनका नाम था मोहम्मद गौरी, सेना से हुए, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है कि आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं। वेरी फर्स्ट हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, आपस में ही झगड़ा करते रहते थे, तो बाहर से जो इन्वेजन होता था वो लोग आसानी से जीत जाते थे। तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर ऐसा नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की सेना को हराया, ठीक है। अब हिंदू किंग का मुस्लिम किंग को हराना ये बहुत ही रेयर हुआ, ये ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादातर वो लोग जीत जाते थे, उनके पास टेक्निकली हमसे ज़्यादा अच्छे हथियार होते थे, वो ज़्यादातर घोड़ों पे होते थे, ठीक है कि नहीं, वो ज़्यादातर बलशाली हुआ करते थे, उनका फिजिकल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता था, और उनका जो लूटपाट का जो तरीका हुआ करता था वो बहुत ही ब्रूटल हुआ करता था। जैसे कि चेंजिस खान, उसकी ब्रुटैलिटी तो इतनी हाई है कि उसको पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्रूटल कहा, एकदम एकदम, और उसका भी अटैक इंडिया पे हुआ था। और हम लोग इतने सॉफ्ट हार्ट थे, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 दफ़ा उसको माफ़ कर दिया था, मोहम्मद गौरी को 16 दफ़ा उन्होंने माफ़ कर दिया था। कई दफ़ा उसने अपने घुटनों पर माफ़ी मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने माफ़ कर दिया, लेकिन ये गलती रही, ठीक है कि नहीं, फाइनल मतलब बापू वाला कल्चर पहले से ही था हमारे पास। पहले से। तो वो क्या है, जब भागता है कोई और भागता है तो उस पर हम लोग अस्त्र अपना नहीं उठाएंगे, ऐसा हमारे को पहले से ही बताया हुआ है। लेकिन एक बड़ा युद्ध जो 1191 में लड़ा, टराइन का जो बैटल फील्ड है उसमें पृथ्वीराज चौहान जब जीते तो मोहम्मद गौरी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुआ, वो बहुत ज़्यादा तैयारी करके आया, और उस इंसल्ट को उसने कैसे शो किया, जिस ड्रेस को पहनकर उसने बैटल लड़ी थी
उस ड्रेस को 1 साल तक नहीं उतारा। जिस बैटल को पहन के उस खूनी कपड़ों को 1 साल तक पहने रखा और 1 साल के भीतर उसने 3 गुलाम खरीदे। उस टाइम पर गुलाम बेचने का धंधा बड़ा अच्छा था, जैसे कि कंप्यूटर की दुकान आजकल बड़ा अच्छा काम है, जैसे कि टीवी फ्रिज की दुकान, ठीक है कि नहीं, आजकल लोग बड़ा अच्छा बिजनेस मानते हैं इसे। ऐसे ही उस टाइम पर गुलाम बेचने का काम बड़ा अच्छा था। तो लोग क्या करते थे, गुलाम खरीद लेते थे, बगदाद के बाजार से खरीदा गया था कुतुबुद्दीन को, और फिर उसको ट्रेंड किया जाता था और उसकी वैल्यू जो है, उसकी खास जो नॉलेज उसको दी गई है उसकी वजह से बढ़ जाती थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की वैल्यू बहुत अच्छी थी। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि उसको मिलिट्री एक्सपीडिशंस का बड़ा नॉलेज था, किसी युद्ध को कैसे लड़ा जाए उसको बड़ा नॉलेज था, इसलिए वो अपने ज़माने का बड़ा हिट गुलाम था। उसको कई बार बेचा गया था, कई बार खरीदा गया था, ठीक है। ऐसे में मोहम्मद गौरी ने उसे खरीदा और मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि उसका जो फिजिक था वो बहुत टॉल था, बहुत वाइड था, बड़ा डायनामिक था, इसलिए उसको अपनी सेना का सेनापति बनाया। मोहम्मद गौरी के कोई लड़का नहीं था, 3 गुलाम खरीदे, यलदौज कोबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने जो है अपनी सेना का सेनापति बनाकर 1 साल के बाद उसी बैटलफील्ड में पृथ्वीराज चौहान की सेना से लड़ने के लिए फिर से भेज दिया। 1 साल के भीतर हमारे हिंदू राजा आपस में फिर से डिवाइड हो गए और हम वो युद्ध हारे। पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध हार गए तो मोहम्मद गौरी की सेनाओं ने कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में उनके किले के अंदर प्रवेश किया और जो नजर आया उसी को गिरा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। क्या तोड़ा फोड़ा? 27 जैन और हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा और उनके जो स्टैच्यूज थे उनको बिहाइडेड किया, डिफेस्ड किया उनको। और बाद में उन 27 जैन हिंदू टेम्पल्स के मलबे को इकट्ठा करके एक मस्जिद बनाई, ये आपके सामने, जिसका नाम रखा कुव्वत उल इस्लाम, जिसका अर्थ है इस्लाम की ताकत, ठीक है। अब आप देखिए भगवान गणेश की मूर्ति कहाँ लगी हुई है, কোথায় লাগিয়েছে দেখো, ওই তো নিচে নিচে লাগা দিয়া। খুব এক্সাইটিং লাগছে, খুব ভালো লাগছে দেখতে ঘুরতে। আর সেই পুরোনো একবার দেখে এসেছিলাম, সেগুলো আবার মনে পড়ে যাচ্ছে কোথায় কোথায় কী করেছিলাম। আমাদের গাইডও কিন্তু খুব সুন্দর বোঝাচ্ছেন, শুনতে ভালো লাগছে গল্পগুলো। ऐबक ने युद्ध जीत लिया तो वो इस इलाके को गवर्न करने लगे, ठीक है। वो गवर्नर था, यहाँ का टैक्स कलेक्ट करना और किसको देना? मोहम्मद गौरी को देना। उसने एक विक्ट्री टावर बनाया, विक्ट्री टावर जो उसने जीत हासिल की उसके खुशी में, वो विक्ट्री टावर आप देख रहे हैं, ये वाला कुतुब मीनार, যুদ্ধে জিতে दैट इज अ विक्ट्री टावर। अब ये विक्ट्री टावर भी है और साथ में एक मीनार भी, ठीक है। मीनार है तो उसका क्या पर्पज है? मीनार का पर्पज होता है कॉल करना, अल्लाह अकबर जोर से बोलना, ताकि सारे के सारे जो बिलीवर्स हैं वो इकट्ठे हो जाएं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड व्हाट इज योर नेम सर? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, अच्छा ठीक। और यहाँ हम देख सकते हैं कि मस्जिद को 5 खास चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। यदि वो 5 चीज़ें हैं तो वो मस्जिद मानी जाएगी और यदि नहीं है तो वो मस्जिद नहीं मानी जाएगी। क्या होती हैं वो 5 चीज़ें? सबसे पहले ईवान, ये जो गेट्स नज़र आ रहे हैं आपको बड़े बड़े, ठीक है, इनका होना जरूरी है। दूसरा क्या होता है? मीनार। तीसरा होता है एक बरामदा, यदि बारिश आ जाए तो उसमें प्रेयर होगी। चौथा होता है एक वाटर टैंक, प्रेयर से पहले अपने हाथ वगैरह पैर वगैरह वो साफ करते हैं। और लास्ट वाला होता है एक सैक्रेड सीट होती है जिसको मीम्बार कहते हैं, जिस पर कि मुल्ला जी बैठते हैं।
अच्छा, अब उसमें तीन चीज़ें तो हैं इसमें, 2 चीज़ें नहीं है, वो वाटर टैंक और मीम बार नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक मॉन्यूमेंट है, मस्जिद थोड़ी है कोई, ठीक है कि नहीं, यहाँ कोई प्रेयर थोड़ी होती है, तो इसलिए वो नहीं है तो नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पूरा करवाया, पहली मंजिल तक बना पाया था। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब वो जिंदा था तो मोहम्मद गौरी मर गया, तो वो फ्री हो गया और उसने खलीफा से परमिशन ले लिया यहाँ इस इलाके को रूल भी करने का और किंग भी बन जाने का। ठीक है, खलीफा ने परमिट कर दिया तो वो किंग बन गया। गुलाम वंश का पहला राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, मामुल्क डायनेस्टी। अब वो पहला किंग बन गया और पहली मंजिल तक इस टावर को बनवा पाया था कि अकस्माती वो खुद मर गया। वो कैसे मर गया? वो खुद कैसे मर गया? वो खुद ऐसे मर गया कि वो पोलो खेल रहा था, घोड़े से गिर के मर गया। अच्छा, उसका कब्र कहाँ पर है? उसका कब्र लाहौर में। अच्छा। उसके मरने के बाद उसका सन इन लॉ इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। ठीक है, इल्तुतमिश, उसने इस टावर को 4th स्टोरी तक बनवाया। अच्छा, ठीक है, 4th स्टोरी तक बनवाया और उसका टाइम, उसने काफी दिनों तक शासन किया। इसका मतलब उसके शासन में स्टेबिलिटी आ गई, लोगों ने एडजस्ट किया, लोगों ने मान लिया, ठीक है भाई, तो हैप्पीली सब लोग चल रहा है। ऐसे में उसने इस मस्जिद को इसके लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में और इसके फ्रंट पे बढ़ाया। वो जो आप बरामदा देख रहे हैं वो इल्तुतमिश ने बढ़ाया, वो टेरिटरी वहां तक है उसका, और ये जो यहाँ तक बढ़ाया, ये जो बना हुआ है, साथ में ही उसने अपना भी मकबरा बनवाया। इल्तुतमिश तो आगे बानिए रेखे दिए, ठीक है ना सर? आइए सर, इधर आइए। मकबरा वाला कुछ गलतियां कर दी। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी और उससे कुछ गलतियां हो गई। कैसी गलतियां हो गई? एक गलती तो उससे ये हो गई कि उसने बुर्का पहन के आना छोड़ दिया। शुरुआत ही उसने बगैर बुर्के के की और कपड़े जो है उसने सैनिकों के, मर्दों के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। तो जो अमीर थे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। पहले तो उन्हें यही बड़ा बुरा लगा कि एक लेडी को राजा बना दिया। अब लेडी हम पे एक शासन करने वाली हो गई। लेडीज का शासन हर एक कोई सहन नहीं करता है। एक तो यही गलती हो गई, ऊपर से वो बगैर बुर्के के आने लग गई। और एक गलती उसने, रजिया सुल्ताना इल्तुतमिशर में है, उससे एक और बड़ी गलती हो गई। वो गलती क्या थी? उसने अपने ही गुलाम के साथ में शादी करने का फैसला ले लिया और वो भी हबशी था, तो वो बिल्कुल ही लोगों को नागवार दिया। फाइनली फिर कॉन्स्पिरेशन हुआ और उसको आउट किया। उसके बाद में वो डायनेस्टी ही, एक बलबन, एक राजा था गयासुद्दीन बलबन उस डायनेस्टी में, और बलबन का भी अच्छा योगदान था वहाँ पे, क्योंकि वो क्या था, बड़ा सिंपल था। वो इतना सिंपल था कि वो बैठने के लिए सिंहासन की बजाय धरती में औरों के साथ बैठ जाता था। तो लोगों को बड़ा पसंद आता था वो, क्योंकि ये राजा नहीं मानता अपने आप को, ये हम जैसा ही है, आम आदमी मानता है अपने आप को, आप लोग का आम आदमी। और उसका शासन भी बिल्कुल अच्छे वाला था। अच्छा, उसके बाद में वो डायनेस्टी खत्म हो गया, खिलजी डायनेस्टी आया। खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने पूरे इंडिया को जीत लिया। इस जीत की खुशी में उसने भी एक टावर बनाने का सोचा, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। उसने अपने टावर को बनाने के लिए प्लेस यहाँ पर पाया। ये अलाउद्दीन खिलजी वाला? अच्छा। इस मस्जिद को भी बड़ा करवाया। ये जो लेफ्ट में आपको ये सारी फाउंडेशंस नजर आ रही है, ये और भी जो आर्चेज थी जो लास्ट तक थी, वहाँ जाओ तक नजर आती है। ये उनकी आर्चेज की फाउंडेशन नजर आ रही है। ये साइड मिस्टीरियस हो गया, दो किंग मर गए टावर बनाने में, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। और इसके पीछे क्या कारण बना कि यहाँ भूतों का डेरा है। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई
फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई इसको पूरा बनाने की। ठीक। এটা তো পুরা হলো। ठीक है ना। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई इसको पूरा बनाने की। ठीक है। ठीक। अब हम आपको इसके नजदीक ले चलिए। यहाँ 2 पैरेट मिलता है, एक कॉमन पैरेट जिसे कि रोज रिंग पैराकीट कहते हैं और एक एलेक्जेंडर पैराकीट। अच्छा, हाँ यही मिलता है, आपको बाहर मुश्किल से मिलेगा। ठीक। दिख रहा है सर, है ना। रोज रिंग पैराकीट और एलेक्जेंडर पैराकीट। अब देखिए सर, उसको यदि आप जूम कर सकें। नहीं उतना जूम नहीं, अच्छी लोकेशन पे बैठो। उतना जूम मेरे पास है नहीं। बुवाई के दागता है बार। अच्छा, खास क्या है वो समझ लीजिए। हाँ बोलिए। उसके शोल्डर पे मैरून पैच है, ठीक है। सुनो सुने ना। शोल्डर पे मैरून पैच है जो रोज रिंग पैराकीट में नहीं होता है। पहचान का जो चिन्ह है वो ये है। वैसे पहचानने के लिए उसका हेड भी काफी बड़ा है, रोज रिंग पैराकीट का हेड भी उसके आगे छोटा है। साइड और ये साइड लाल लगता है। हाँ यस सर, बिल्कुल एकदम सही बात। अब फिलहाल अपना अटेंशन आप इस पिलर की तरफ लेके, नहीं सब पिलर अटेंशन था। ठीक है। ये पिलर आपको फर्स्ट साइड पे ही काफी इम्प्रेस करेगा क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता है। ब्रिटिश ने जब इस पिलर को यहाँ पाया तो उन्होंने देखा कि यार कैसा लोहा है ये कि जिसमें जंग नहीं लगता। ठीक है कि नहीं, ये कैसा लोहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि यदि कोई 100 साल पुराना यदि कोई पिलर हो जाएगा तो जंग की वजह से वो तो बारिश बार बार होंगी और हवा भी चलेगी और ये सब होगा तो डिसमेंटल हो जाएगा, वो तो जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा बिल्कुल एकदम। और यदि वो 100, 200, 300, 400 साल पुराना होगा तो फिर उसका तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन जब इस लैंग्वेज को डिकोड भी ब्रिटिश ने किया तब ये पता चला कि ये 4th सेंचुरी का है, 4th सेंचुरी का है। 4th सेंचुरी का पिलर हैप्पीली स्टैंड कर रहा है जिसमें कि जंग नहीं लगता है। तो उसको कैसे नहीं लगता है इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करके ये पाया कि ये 6 धातुओं के सहयोग से मिलके बनाया गया। ठीक है। इसको बनाने में 6 धातुओं का इस्तेमाल, 6 मेटल्स यूज्ड बाय द हिंदू पीपल। अब पहली बात तो उनको यही भरोसा नहीं हुआ कि हिंदू लोगों ने इसको कैसे बना दिया होगा, क्योंकि वो तो हिंदू लोगों को बड़ा ही गंवार समझते थे, गंवार समझते थे। तो ये उनको जो है बहुत आश्चर्य में डालने वाला पिलर है। ठीक है। इन्वेडर्स ने 12th सेंचुरी में जब इसको यहाँ पर पाया तो यहाँ पर एक भगवान विष्णु के जो वाहन हैं, भगवान विष्णु के वाहन का क्या नाम है? तो गरुड़ भगवान की मूर्ति इसके ऊपर थी। ठीक है। गरुड़ भगवान की मूर्ति इसके ऊपर थी, उसको तोड़ दिया उन्होंने, वो अब नहीं है। ठीक है। ये यहाँ पर कहाँ से आया? पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल इसे उड़ीसा से लेकर आए। ठीक है। कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है। एक किताब है 50 रुपए की आती है जो मैंने पढ़ी थी, उसमें उड़ीसा लिखा। ठीक है। उन्होंने वहां से इसको डिसलोकेट करके यहाँ फिक्स कर दिया। अच्छा। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल। हाँ, अनंगपाल नाम लगाया कौन? पृथ्वीराज चौहान ने लगाया? अनंगपाल। अनंतपाल नहीं लगा। अनंगपाल। ठीक है। ये कितना डेंस है। यदि किसी एग्जाम्पल को हम किसी के सामने देना चाहते और प्राकृतिक का यदि नमूना ये हो तो वाकई में ही कोई बात कुछ अच्छे से कही जा सकती है। ठीक है कि नहीं? जैसे कि DDLJ बनाया, अरे यार क्या पिक्चर बनाया है, गजब यार, बनाने वाले ने क्या सुपर पिक्चर बनाया। तो उसका जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन का जो इसका स्किल है वो सुपर बन गया, इसीलिए तो वो कई सालों तक चलता रहा। ऐसे ही
ये जो क्राफ्टमैनशिप है ये बताती है कि वर्कर्स जो थे वो कितने नॉलेजेबल थे, उनका जो सिजल करने का जो स्टाइल है। और ख़ास तौर पर ये जो पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ जो है, राइटिंग वर्सेस ऑफ कुरान जो लिखा हुआ है, ये पैटर्न भी यूनिकली यही मिल रहा है। सेकंड ओल्डेस्ट पैटर्न है वर्ल्ड वाइड इस्लाम में। सबसे पुराना कूफिक है, सेकंड नस्तालिक है। ये लिखने के तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कैलीग्राफी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका नाम है नस्तालिक। अच्छा। अब एक आर्कियोलॉजिस्ट के तरीके से जब आप सोचेंगे, यानी कि आप खुद ही आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आपने इस मॉन्यूमेंट को विजिट किया और आपने जैसे ही इस कैलीग्राफी को यहाँ पाया तो आप बता देंगे ये तो 1000, 1100, 1200, 1300 के टाइम की बिल्डिंग है, क्योंकि ये लिखने का स्टाइल उसी टाइम में था। उसके बाद में और मॉडर्नाइज हो गया। तो इल्तुतमिश ने जो हिस्सा बनवाया है उसमें वर्कर्स जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्होंने जिस पैटर्न को वहाँ इस्तेमाल किया है उसको नश्क कहते हैं। अच्छा। ये नस्तालिक है, ये नश्क है और सबसे पुराना कूफिक है। ठीक है। अब ये बनाया तो अच्छे से है क्योंकि आज तक स्टैंड कर रहा है, लेकिन हम ये पाते हैं कि इसमें कुछ गलतियां हैं, जैसे घड़ा। ये घड़ा कहाँ से आ गया? घड़ा तो हमारा निशान है, हमारा चिन्ह है। और कमल का फूल ये बताता है कि इसको बनाने वाले हिंदू थे। अच्छा। उन्होंने एज ए गलती है, एज ए मिस्टेक है, एज ए एरर है ये, लेकिन मुस्लिम्स ने उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया। अब शुरुआत में जो ये बनाने का तरीका है ये बताता है कि उनको बड़ी जल्दी रही होगी। देखो पत्थरों का शेप जो है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। इश्क वाला सीन हो गया था यहाँ पर। देख रहे हैं ना आप, ये कोई पत्थर बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, यही सही तरीके से ट्रिम नहीं किया होगा। तो इसका मतलब है कि उनको बनाने की बड़ी जल्दी रही होगी। लेकिन हम ये पाते हैं कि इसका एंड जो है ऊपर की तरफ ये बाकी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, वहाँ पर इसमें बहुत काम किया गया। अब हम आपको एक मार्क दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर आइए। तो नादिर शाह ने जब इन्वेजन किया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, जो एक मुगल शासक था, उसने इसको तोड़ने के लिए कैनन का फायर किया था। और उस कैनन के फायर को करने के बाद में इसका पीछे का तरफ उसका असर हुआ। आप देखेंगे वहाँ एक निशान पड़ा हुआ, डेंट पड़ा हुआ है। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि वो मुस्लिम थे, तोड़ना चाहते थे इसको, तो उन्होंने जो है जब इस पे फायर हुआ तो वो गोला जो है यहाँ से जब छितरा तो उसने बहुत नुकसान किया। देखिए सर, ये जो तोड़-फोड़ नजर आ रही है आप, ठीक है कि नहीं, ये उसके छितरन की वजह से तोड़-फोड़ हुई है। ठीक है। इसके अलावा इस डायरेक्शन में हमारे को एक मंजिल नजर आ रही है, उस डायरेक्शन में भी नजर आ रही है, वहां भी नजर आ रही है, लेकिन इस कॉर्नर में नजर नहीं आ रही है। तो उस गोले की वजह से ही वो टूट गई। अच्छा। नादिर शाह वाला, नादिर शाह का जो गोला था उसी की वजह से वो टूट गई। ठीक है सर। आइए, तो ये जो आर्चेज आप देख रहे हैं, ये आर्चेज जो हैं फॉल्स आर्चेज हैं, कोरबेल आर्चेज है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इनमें की स्टोन नहीं लगा हुआ है। की स्टोन एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि किसी भी आर्च को लॉक कर दिया जाता है और फिर उसको कई मंजिल बनाया जा सकता है। बिल्डिंग को कई मंजिल बनाया जा सकता है। यहाँ पर वो एब्सेंट है। इसका मतलब इस इमारत को बनाने वाले जो लोग थे उनको उसका नॉलेज नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर सेंट्रल एशिया की कुछ डायनेस्टीज जो थी वो कोलैप्स कर गई, खराब हो गया, उनका शासन प्रबंध खराब हो गया। तो वहाँ के आर्टिजन्स को अलाउद्दीन खिलजी ने शरण दिया और उन्होंने ट्रू आर्चेज का नॉलेज हमें दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर उसको बताया? ये पहला कुरानिक स्कूल बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा। मदरसा।
और यहाँ पर आप ट्रू आर्च देख सकते हैं। जैसे आपने ये आर्च देख रहे हैं आप, इस आर्च के बीचों बीच में एक ट्रायंगल शेप वाला स्टोन नजर आ रहा है। हाँ। इसे की स्टोन कहा जाता है। ठीक। यदि आप इसे खींच लेंगे, इसे हटा देंगे तो ये बिल्डिंग गिर जाएगा। और यदि ये लगा रहेगा तो ये अभी और 1000 साल तक नहीं गिरने वाला है। आर्च का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, डोम गिर सकता है। ठीक है, ये नॉलेज कब आया? 14वीं शताब्दी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गया, तुगलक डायनेस्टी शुरू हुआ। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर बिजली गिरने की वजह से इस टावर को नुकसान पहुंचा। फिरोज शाह तुगलक ने वाइट मार्बल से इसको डेकोरेट किया, एक मंजिल और ऊपर बढ़ाया और एक छतरी से इसको सजाया। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आया। सिकंदर लोधी ने भी लाइटनिंग की वजह से नुकसान पहुंचा था तो उसको भी रेस्टोरेशन करवाया। मुगल्स का पीरियड आया 350 साल, उन्होंने टच नहीं किया। ब्रिटिश का पीरियड आया 250 साल। उनके टाइम पर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका बहुत डीप इंटरेस्ट था इसमें, उनका नाम था स्मिथ। उन्होंने पहला वाला कुपोला हटा दिया, अपना कुपोला लगा दिया और ब्रिटिश ने ये आयरन रिंग भी लगाया। अच्छा, ऊपर वाला जो आयरन रिंग, ऊपर वाला। तो एक बार लॉर्ड कर्जन जो वॉइसरॉय थे और जिनका ज़्यादातर योगदान भारत के मॉन्यूमेंट्स को बचाने में माना जाता है, उन्होंने बहुत एफर्ट किया था। उन्होंने इस मॉन्यूमेंट को विजिट किया और उन्होंने ये पाया कि वो जो कुपोला स्मिथ ने लगाया था वो एप्रोप्रिएट नहीं था, ओरिजिनल जैसा नहीं था। तो उन्होंने उसे हटाने का ऑर्डर दे दिया। उसके हटाने पर इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, बेस पर इसका डायमीटर 14.37 है और टॉप पर इसका डायमीटर केवल 2.5 है। चढ़ने के लिए 379 स्टेप्स हैं। बीच में रुकने के लिए कई जगहों पर खिड़कियां बनी हुई हैं, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं और थोड़ा सांस ले सकते हैं। 1980 में एक भगदड़ हो गई थी इसमें, इसलिए कुछ बच्चे मर गए थे, इसलिए इसको तब से बंद किया हुआ है। ठीक है, 1980 जब ये खुला हुआ था तो पहली मंजिल तक छोटे बच्चे जा सकते थे, तीसरी मंजिल तक एडल्ट्स जा सकते थे। मेरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ सर, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका नाम और मोबाइल नंबर बोल दीजिए, कोई आएगा, मेरा ये ब्लॉग है। मेरा नाम कुलदीप सिंह, 8875 797599। কেমন লাগলো? দারুণ লাগলো, দারুণ। কেমন লাগলো? তো সত্যি ভালো লাগলো। ক্যান্ডিড